بارے میں, DKA پیشنٹ کے بارے میں. تو مائی کوشچن فار یو پیپل از کہ ان DKA واٹ ہیپن, یہ مجھے اسٹیپ 3 میں کوشچن آیا تھا, PMD اسٹیپ 3 میں 10 نمبر کا کوشچن تھا اسٹیشن میں, لیب انٹرپریٹیشن ان DKA واٹ ہیپن ٹو انائن گیپ. اگر یہ کوشچن آ جائے کہ انائن گیپ کو کیا ہوگا, ٹھیک ہے, پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ انائن گیپ ہے کیا چیز, ٹھیک ہے. لیکن دس type of question they all the time ask in the exam. If the question come کہ what will happen to anion gap in a DKA patient, یہ چیز آپ لوگوں کو آنی چاہیے کہ anion gap کو کیا ہو سکتا ہے DKA patient میں. بہت آسان ہے. دیکھیں آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ anion gap is equal to, دیکھیں anion gap is equal to sodium minus بائی کاربونیٹ پلس کلورائڈ. یہ MCQs ہے, اس کو کہتے ہیں انائن گیپ کا فارمولا. دوز الیکٹرولائٹس ہو آر پوزیٹیولی چارج ان دا باڈی دے آر کالڈ کیٹائنس. اس کو کیا کہتے ہیں, کیٹائن. جو نیگیٹو چارج ہے اس کو کیا کہتے ہیں, انائنس کہتے ہیں. اگر ہم کیٹائن سے انائن کو مائنس کریں اس کو ہم کہتے ہیں انائن گیپ, ٹھیک ہے. اس کا مطلب سوڈیم مائنس H2 پلس Cl. نارمل اس کا لوویسٹ ویلیو ہوتا ہے 135. کتنا ہوتا ہے 135. اس کا نارمل لوویسٹ ویلیو ہے 22 اور اس کا نارمل لوویسٹ ویلیو ہے 100. دیکھیں یہ 135 سے نارمل 145 تک ہوتا ہے, یہ 22 سے 28 26 تک ہوتا ہے, یہ 100 سے 110 تک ہوتا ہے. انائن گیپ کے اندر ہم لوویسٹ ویلیو ڈالتے ہیں. کیا ڈالتے ہیں, لوویسٹ ویلیو. تو دیکھیں 135 مائنس ان دونوں کو پلس کرے 122 اور ادھر دیکھیں اگر اس کو مائنس کرے تو کتنا آئے گا, 13 آئے گا کہ نہیں. نارمل انائن گیپ کا جو ایوریج ہے وہ 10 سے لے کے کتنا ہے 14. اس کے درمیان انائن گیپ از فیزیولوجیکل, یہ نارمل ہے. یہ میں آپ لوگوں کو نارمل انائن گیپ کا کیلکولیشن بتا رہا ہوں. اگر کسی نے پوچھا کہ باڈی کی انائن گیپ معلوم کرے, انائن گیپ معلوم کرنے کے لیے ہمیں 3 ویلیوز کا پتہ ہونا چاہیے, سوڈیم کا, کلورائڈ کا اور بائی کاربونیٹ کا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں. سوڈیم کا نارمل لوویسٹ ویلیو کتنا ہے 135 ہے, بائی کاربونیٹ کا 22 ہے اور کلورائڈ کا 100 ہے. ایکویژن سے کر لے تو کتنا جاتا ہے 13. 10 سے لے کے 14 کے درمیان انائن گیپ از کنسیڈرڈ نارمل. یہ فیزیولوجیکل ہے. اور ان پر کلیئر ہے, سب کلیئر ہے, ٹھیک ہے. اب ادھر سن لے, پیشنٹ ہے DKA کا, اس کی ABGs اس لوگوں نے دی ہے. اب پیشنٹ آپ لوگوں کو ایگزام میں دیا ہے کہ DKA پیشنٹ لایا گیا تھا ایمرجنسی میں اور اس کی جناب ہم نے سوڈیم الیکٹرولائٹ کی ہے. سوڈیم واز 135, کلورائڈ واز 100 اور HCO3 واز 15. اس کی انائن گیپ معلوم کریں. MCQs اس طرح آتا ہے. آپ لوگوں کو ویلیو دی ہوگی لیکن ایگزام کے دن یہ چیز پتا ہونا چاہیے کہ انائن گیپ معلوم کیسے کرتے ہیں. بات سمجھ گئے کہ نہیں. جلدی ہاتھ پہ آپ لوگ 2 منٹ میں معلوم کر سکتے ہیں. ان ویلیو کے انائن گیپ کو دیکھتے ہیں. سوڈیم کتنا ہے شاباش 135 مائنس پھر بائی کاربونیٹ 15 ہے پلس کیا کریں گے 100 کریں گے, پھر 135 مائنس 100 کیا آئے گا 15. تو 135 مائنس 115 از اکول ٹو دیٹ از 20. انائن گیپ کتنا ہے 20. انائن گیپ از ڈیکریز اور انکریز, ہاں جی انکریز ہے. ایگزام میں یاد رکھے جب بھی انائن گیپ کی ویلیو 14 کو کراس کرے, انکریز آ جائے, اٹ شوز ایسیڈوسس ان دا باڈی. یہ کیا شو کرتی ہے ایسیڈوسس, کہ کنٹینیوسلی کیا بنتے جا رہے ایسڈ بنتے جا رہے. اب آپ لوگ کہو گے اس کو پروف کیسے کرنا ہے. دیکھیں انائن گیپ بڑا اس لیے ہے کہ سوڈیم لیول خراب ہوا ہے نہیں, سوڈیم از نارمل 135. کلورائڈ خراب ہوا ہے نہیں. کیٹو ایسیڈوسس, ایسیڈوسس کے اندر کیا چیز پروڈیوس ہوتا جا رہا ہے ہائیڈروجن, اور ہائیڈروجن کو کم کرنے کے لیے باڈی کیا یوز کر رہی ہے HCO3. تو فری HCO3 کیا ہو گیا ہے کم, تو وہ 22 سے کم ہو کر کس پہ آیا ہے 15 پہ آیا ہے. اس 15 کا مطلب یہ ہے کہ HCO3 اس لیے کم ہے کہ وہ کس کے ساتھ فائٹ کر رہی ہے H+, کیونکہ باڈی میں کیا ہے ایسیڈوسس. اس لیے انائن گیپ کیا آئے گا زیادہ. when ion gap is increased it will show that there is acidosis in the body. So in DKA patient anion gap will be decreased, anion gap will be normal or anion gap will be increased.
आंसर इज इंक्रीज। ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प देंगे एग्जाम के अंदर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रीनल फेलियर पेशेंट में अनायन गैप क्या होगा? एनीवन? रीनल फेलियर पेशेंट में हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। Aldosterone help in the retention of sodium, water, excretion of hydrogen and potassium। जब रीनल फेलियर है, हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो एसिडोसिस होगा कि नहीं? उस एसिड को कम करने के लिए क्या यूज होंगे? HCO3, फिर अनायन गैप बढ़ जाएगा। तो रीनल फेलियर और DKA पेशेंट दोनों में मेटाबॉलिक क्या होता है? एसिडोसिस, और उन दोनों में अनायन गैप क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। लेकिन बिलीव मी, दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क, हाउ टू मेजर एंड कैलकुलेट अनायन गैप। Sodium minus bicarbonate plus chloride, this is the formula how to remember anion gap formulation। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द पॉइंट टू रिमेंबर कि अगर फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट है, इसकी डायग्नोसिस क्या करना है? डायग्नोसिस के बारे में 2-3 पॉइंट्स लिखे जो एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो ये है, हम शुगर लेवल को चेक करते हैं 2 ओकेजन्स पे, एम्प्टी स्टमक एंड फुल स्टमक, दोनों पे चेक करते हैं। अगर हम किसी की एम्प्टी स्टमक पे ब्लड शुगर चेक करें, इसको FBS कहते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर। इसको क्या कहते हैं? फास्टिंग ब्लड शुगर। अगर किसी की हम खाने के 2 घंटे बाद चेक करें, इसको RBS कहते हैं, रैंडम ब्लड शुगर इसको कहते हैं। तो RBS एंड FBS, द बेस्ट वे टू डिटेक्ट शुगर इज FBS। एम्प्टी स्टमक पे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आती है एज कंपेयर टू रैंडम। वाई? क्योंकि वी डोंट नो द क्वालिटी ऑफ द फूड द पेशेंट इज टेक। मतलब कोई स्वीट लेता है, किसी ने बेकरी सिरप खाई है, उसने खाना नहीं खाया है, तो उसका शुगर बहुत ज्यादा आएगा बनिस्बत उस बंदे के जिसने उसी टाइम पे कोई वेजिटेबल खाई हो। तो फास्टिंग सबकी एक जैसी आती है, रैंडम में फ्लक्चुएशन आ सकती है। MCQ सुन ले कि FBS ये नॉर्मल होता है 100 से लेके 110 तक, याद रखे 110 तक, दैट इज नॉर्मल। अगर किसी का FBS आ जाए 110 से कितने तक? 126 मिलीग्राम पर DL तक, इट इज हाई बट स्टिल द पेशेंट इज नॉट डायबिटिक। इसको कहते हैं प्री डायबिटिक। इसको क्या कहते हैं? प्री डायबिटिक। द पेशेंट हैज अ रिस्क फॉर डायबिटीज बट स्टिल द पेशेंट इज नॉट डायबिटिक। तो ये वैल्यू हाई है कि नहीं है? हाँ, हाई है, बट स्टिल द पेशेंट इज एक्टिंग नॉर्मल। इसको हाई नॉर्मल वैल्यू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाई नॉर्मल वैल्यू। इट इज हाई बट स्टिल द पेशेंट इज नॉर्मल। पेशेंट हैज अ रिस्क फॉर डायबिटीज, इट्स नॉट डायबिटीज बट द वैल्यू इज नॉर्मल गोइंग टुवर्ड डायबिटीज। इसको क्या कहते हैं? प्री डायबिटिक रेंज। इसको प्री डायबिटिक रेंज कहते हैं 110 से लेके 126 तक। अगर कौन से स्टमक पे आ जाए? एम्प्टी स्टमक पे। अगर ये फिर 126 को क्रॉस करे, 126, दैट इज कंसिडर्ड एज डायबिटीज। तो क्वेश्चन आएगा कि FBS फास्टिंग ब्लड शुगर अगर किस वैल्यू को क्रॉस करे, देन वी कैन से इट इज डायबिटिक 126। बात समझ गए कि नहीं? किसी का 110 126 से ज्यादा आ रहा है, आप इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करें, बजाय इसके उसको कहे रेगुलर क्या करे? एक्सरसाइज करे, डाइटरी मॉडिफिकेशन लाइक स्वीट इनटेक क्या कम क्या करे, स्ट्रेस अवॉइड क्या करे, अपने आप को बिजी रखे, अखबार पढ़े, टीवी देखे, कोई स्पोर्ट्स खेले, ताकि उसका शुगर लेवल क्या है? कम। मेरे लाइफ में इतने कम उम्र की प्रैक्टिस 4-5 पेशेंट ऐसे नोन देखे हैं जिसकी रेंज 120 और 110 के दरमियान है। वो कहते हैं कि ये रेंज पिछले 30-40 साल से हो क्या रही है। कुछ लोग जेनेटिकली प्री डायबिटिक होते हैं लेकिन दे डू नॉट जंप टुवर्ड डायबिटीज। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इन लोगों पे चेक रखना जरूरी है। आप 115 वाला बंदा देखे, उसको कहो कि अब 1 मंथ के बाद रिविजिट कराए, आप उसकी प्री डायबिटिक चेक करें, इस क्या पता है वो आगे चला जाए। लेकिन बहुत से लोग हैं जो न कम होती है ना ज्यादा, दे आर प्री डायबिटिक रेंज, दे आर आल्सो सेफ, वो सेफ है, लेकिन अनटिल अनलेस इट डू नॉट एक्सीड 126। क्लियर है? रेंडम पे देखे, रेंडम अगर हम देखे ये 160 से लेके 180 मिलीग्राम पर DL, दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल मिलीग्राम पर DL, ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर किसी का 180 से ज्यादा आ जाए, 200 से कम मिलीग्राम पर DL, दैट इज स्टिल कॉल्ड हाई नॉर्मल वैल्यू, इसको प्री डायबिटिक वैल्यू कहते हैं। और अगर रैंडम शुगर 200 को भी क्रॉस करे, देन इट इज अ फुल ब्लोन डायबिटीज। फिर ये 200 है। तो फॉर मी द इम्पोर्टेंट वन टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू,
दैट इज द रेंजेस कि फास्टिंग ब्लड शुगर और एक एम्प्टी स्टमक पे शुगर टेस्ट करना पता है कितने घंटे के बाद होता है? अभी मील खाया है, अभी फूड खाया है, एटलीस्ट यू डू नॉट टेक एनीथिंग फॉर 8 आवर्स। कितने घंटे में? 8 आवर्स। 8 आवर के बाद अगर आप टेस्ट करें इट विल बी कंसिडर्ड एज FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर। लेकिन इसके दरमियान आप फ्लूइड ले सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, लेकिन आप कोई स्वीट ड्रिंक वगैरह जिसमें ग्लूकोज वगैरह हो वो नहीं ले सकते, लेकिन आप पानी वगैरह पी सकते हैं। रोजा नहीं रखना, यू शुड टू टेक ड्रिंक्स, लेकिन हैवी फूड नहीं खाना ताकि आपकी स्टमक बिल्कुल एम्प्टी हो जाए। तो देयर शुड बी 8 आवर गैप बिटवीन द मील फॉर डूइंग FBS। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट वन टू MCQs, दैट इज HbA1c। ये नाम सुना है कि नहीं? HbA1c कर लेते हैं, ये भी MCQs है। दिस टेस्ट विल शो ग्लूकोज स्टेटस फॉर द लास्ट प्रीवियस 3 मंथ्स। ये 3 महीनों की ग्लूकोज स्टेटस बताती है। तो जो क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट होते हैं बहुत टाइम से, उसकी 3 महीनों की स्टेटस के लिए हम क्या लिखवाते हैं? HbA1c। तो आप लोग ये लिखे, दिस शोज डायबिटिक स्टेटस अप टू 3 मंथ्स, मतलब प्रीवियस 3 मंथ्स की डायबिटिक स्टेटस ये बताते। बहुत से लोग करते हैं HbA1c, और ये मिलीमोल में हम लेते हैं। नॉर्मली 6 से लेके 6.9 दैट इज नोन एज मिलीमोल पर लीटर, दैट इज नॉर्मल। लेकिन 7 से ज्यादा इट इज कंसिडर्ड डायबिटिक। अगर 7 मिलीमोल पर लीटर से ये ज्यादा जाए तो दैट शुड बी डायबिटिक पेशेंट। तो कहने का मतलब ये है, आप FBS करते हैं, RBS करते हैं, और इसके बाद HbA1c कराते हैं। इन जी ओके, इट इज अ टाइप ऑफ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर अ पेशेंट हु हैज डायबिटिक फ्रॉम लॉन्ग रन। मतलब पिछले वो क्रोनिक डायबिटिक होते हैं, किसी को न्यू ऑनसेट डायबिटीज होती है, उसका FBS RBS डिरेंज होता है, लेकिन HbA1c स्टिल नॉर्मल बिकॉज इट विल शो द स्टेटस फॉर 3 मंथ्स। तो इट इज वेरी बेस्ट फॉर दोज पीपल हु आर क्रोनिकली डायबिटिक। ठीक है, न्यूली ऑनसेट के लिए हम FBS करते और RBS। लेकिन एक चीज याद रखे, फॉर गुड प्रैक्टिशनर FBS RBS पे डायरेक्ट डायबिटीज अनाउंस ना करे। यू शुड रिपीट ऑन 2 or 3 occasions। 3 दिन बाद फिर से रिपीट करे, 4 दिन बाद फिर से रिपीट करे। 3 से 4 दिन के अंदर अगर वो डाइटरी कंट्रोल भी करे, लाइफस्टाइल मॉडिफाई भी करे, फिर भी FBS RBS डिरेंज आ रही है, देन यू शुड गो फॉर सम डायबिटिक। ठीक है, ट्रीटमेंट हम पे डायबिटिक ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन रेंजेस शुड बी केप्ट इन द माइंड लाइक दिस। ठीक है जी। तो दिस इज द टेस्टिंग टेक्निक फॉर डायबिटीज। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को यह पता करना चाहिए कि जब डायबिटिक पेशेंट आएगा उसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होगी, मतलब टिपिकल फीचर्स। टिपिकल फीचर डायबिटीज की ये है, व्हाट हैपन टू ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड? इंक्रीज। ग्लूकोज एक क्या है? सल्यूट है कि सॉल्वेंट है? सल्यूट है। इट कैन क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर टू ड्रा वाटर फ्रॉम द सेल्स। जब ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाए तो वो सेल से क्या ड्रा करता है? वाटर, एंड दैट वाटर रीचेस टू द किडनी, कैन लीड टू एक्सेस यूरिनेशन। डायबिटिक पेशेंट में यूरिन क्या होती है? ज्यादा, दैट इज पोलीयूरिया। तो सबसे पहले तो लेके देयर इज पोलीयूरिया। पोलीयूरिया मीन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन इज कॉल्ड पोलीयूरिया। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज बताने लगा हूं, डायबिटिक लोगों को रात को ज्यादा यूरिन आती है कि दिन को? रात को ज्यादा आती है। वजह यह है कि दिन को ये लोग जब भी कुछ करते हैं या घूमते फिरते हैं, उसकी एनर्जी कंजम्पशन के लिए ग्लूकोज यूज होते हैं। जब ये स्टे करते हैं नाइट में, उसकी बॉडी रिलैक्स होती है, ग्लूकोज काम करने के काबिल नहीं होते, तो वो वाटर क्या करते हैं? सेल से ड्रा कर देते हैं। तो ड्यूरिंग द डे ग्लूकोज यूज इन एनर्जी, तो देयर इज नो ड्राइंग इफेक्ट फ्रॉम द सेल। लेकिन ड्यूरिंग द नाइट जब हम स्लीप के लिए जाते हैं तो फिर ग्लूकोज एनर्जी में यूज ज्यादा नहीं होते, तो वो सेल से क्या ड्रा करते हैं? वाटर, एंड दैट वाटर विल गो इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस यूरिन। तो द पेशेंट डिवेलप पोलीयूरिया, ब्रैकेट में लेके मेनली इन द नाइट। इसको नॉक्टर्नल पोलीयूरिया भी कहते हैं, मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन ड्यूरिंग द नाइट। अगर यूरिन बंदा ज्यादा पास करे तो उसको तरस ज्यादा लगेगी कि कम? ज्यादा, दैट इज पोलीडेप्सिया। इसको क्या कहते हैं? पोलीडेप्सिया। तो पोलीडेप्सिया मीन एक्सेसिव थर्स्ट। हाइपोथैलेमस इज अ थर्स्ट सेंटर। ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस एक्टिवेटेड व्हेन वी नीड अमाउंट ऑफ वाटर। जो यूरिन हमने पास की है उसको रिप्लेस करने के लिए हमने वाटर पीनी है, वो एक्सेसिव थर्स्ट सेंटर, पोलीडेप्सिया। और इसके साथ डायबिटिक पेशेंट को ज्यादा भूख लगती है, दे ईट अलॉट, पोलीफेजिया। मतलब उन लोगों में
ईटिंग ज़्यादा होती है पॉलीफेजिया, क्योंकि फ्लूइड भी कम होती है। ग्लूकोज इन लोगों को एनर्जी नहीं देती, वजह यह है कि ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी इफ इट इज इन द सेल, लेकिन इन लोगों में ग्लूकोज किधर होता है, आउटसाइड द सेल, तो इन लोगों में वो सही तरीके से एनर्जी नहीं डिलीवर कर सकती। तो इसको हम कहते हैं 3P ट्राइएड्स। इसको हम 3P ट्राइएड कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, पोलीयूरिया, पोलीडेप्सिया एंड पोलीफेजिया, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में आप लोग यहाँ पे एक और चीज भी ऐड करें, यूरिन आरी। हम क्या कर सकते हैं, यूरिन आरी भी कर सकते हैं, और यूरिन आरी के अंदर यू विल शो शुगर ट्रेसेस। इसके अंदर क्या आती है, शुगर ट्रेसेस आती है। पता है पहले पहले जब रिसर्च इतनी डेवलप नहीं थी, लोगों को कहा जाता था व्हेन यू पीपल वांट टू यूरिनेट इन द ओपन स्पेस, खेत वगैरह में वो यूरिनेट करते थे, और 1 घंटे के बाद अगर उस यूरिन को ये चवेंटिया वगैरह आ जाती थी, इसका मतलब इस यूरिन के अंदर शुगर है। क्या है, शुगर है। इससे डायबिटीज का अंदाजा होता था। लेकिन आजकल यूरिन आरी करते हैं, अगर इसमें ग्लूकोज ट्रेसेस आ जाती है तो दैट इज नोन एज अ डायबिटिक पेशेंट। क्लियर है कि नहीं? तो यूरिन एक्सेसिव, ओके, हाउ मच ग्लूकोज इज फिल्टर इन द किडनी, 100%, और ग्लूकोज फिल्टर होने के बाद ब्लड को दोबारा क्या होती है, रीअब्जॉर्ब। तो नॉर्मल बंदे में कितना ग्लूकोज यूरिन में जाना चाहिए, 0%, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए अनकंट्रोलेबली तो किडनी उसको हैंडल नहीं कर पाएगी, तो एक्सेस फिर किधर जाएगी, यूरिन में। तो यूरिन आरी के अंदर एक्सेस ग्लूकोज भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ सिंपल टेक्निक, पोलीयूरिया, पोलीडेप्सिया, पोलीफेजिया एंड डायबिटिक पेशेंट लेटर कंप्लेंट वेट लॉस। इन लोगों में क्या होती है, वेट लॉस होती है। डायबिटिक पेशेंट ये आहिस्ता आहिस्ता बॉडी ये कमजोर होती जाती है और इसकी वेट क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। ठीक है जी। अगर डायबिटीज पेशेंट आ जाए, इसको हम प्रॉपरली ट्रीट ना करें तो डायबिटीज पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। देयर आर सम कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज पेशेंट। क्लियर है? डायबिटिक पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन कौन बता सकते हैं, शाबाश। If diabetes is not treated well, excess sugar can damage myelin sheath in the nerve, can cause diabetic neuropathy। ये क्या करा सकती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन आएगी पेशेंट को, टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन। इसका मतलब कि शुगर लेवल क्या हो गया है, बढ़ गया है। बहुत से लोग मैंने देखे कि जब उसकी शुगर एकदम स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाती है तो उन लोगों की जनाब इनवॉलंटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, और टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन। द रीजन इज एक्सेस शुगर कैन डैमेज माइलिन शीट अराउंड द एक्सान। तो डायबिटिक क्या हो सकती है, न्यूरोपैथी। डिपेंड करता है कि नर्व कहाँ की इन्वॉल्व है। अगर वो नर्व इन्वॉल्व हो जाए डायबिटीज के अंदर जो स्टमक को सप्लाई करती है, किसको सप्लाई करती है, स्टमक, तो कैन द स्टमक विल वर्क प्रॉपरली, नो। दिस कंडीशन इज कॉल्ड गैस्ट्रोपेरेसिस। इसको क्या कहते हैं, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस। डिफेक्ट इन द स्टमक, पैरालिसिस ऑफ द स्टमक ड्यू टू नर्व इन्वॉल्वमेंट इज कॉल्ड डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस। ठीक है ना? तो फिर स्टमक प्रॉपरली कंट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। तो कैन द फूड विल गो टू द ड्यूडिनम, नो, फूड विल स्टे इन द स्टमक। अगर फूड नीचे नहीं जाएगी, बंदा ऊपर से फिर नहीं ले सकेगा। जब फूड नहीं लेगा द पेशेंट डेवलप वेट लॉस। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डायबिटीज कैन डैमेज द आई, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है कि नहीं? बिकॉज डायबिटिक रेटिनोपैथी, बहुत से लोग आते हैं कि अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से उसको ब्लरिंग ऑफ द विजन होती है, उसको चीजें सही तरीके से नजर नहीं आती, रेटिना कैन डैमेज, दैट इज कॉल्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ये क्या करा सकती है, नेफ्रोपैथी। इट कैन डैमेज द किडनी बैडली। जब हम इंशाल्लाह किडनी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम पढ़ेंगे, उसमें मैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी पे मजीद क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन if the question come in exam, drug of choice for diabetic nephropathy, ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor, और इसका जो बेस्ट ड्रग है दैट इज कैप्टोप्रिल। नाम सुना है क्या नहीं? कैप्टोटेन गोली का नाम सुना है, जो जुबान के नीचे रखते हैं हाइपरटेंशन वगैरह में, दैट इज ACE इनहिबिटर। इट इज नेफ्रोप्रोटेक्टिव, ये किडनी को प्रोटेक्शन देती है, एंड दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विच कंडीशन, आंसर इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी। फिर डायबिटीज कैन डैमेज द विसल, कैन कॉज डायबिटिक वस्कुलोपैथी। ये क्या करा सकती है, वस्कुलोपैथी। और पता है अगर वस्कुलोपैथी हो जाए, विसल खराब हो जाए लोअर लिम्ब में, हाँ जी, एनीवन, व्हाट विल हैपन इफ विसल इज डैमेज, व्हाट विल हैपन टू ब्लड सप्लाई इन द लोअर लिम्ब, डिक्रीज
कैन कॉज डायबिटिक फुट, गैंग्रीन करा सकती है। क्या करा सकती है? गैंग्रीन। बताया था नेक्रोसिस, एबनॉर्मल सेल डेथ इन द लोअर लिम्ब इज कॉल्ड गैंग्रीन। तो इनिशियल जो गैंग्रीन होगी दैट इज ड्राई गैंग्रीन, इसको क्या कहते हैं? ड्राई गैंग्रीन। और इस गैंग्रीन पे अगर सुपर इन्फेक्शन हो जाए, वहां पे पस बन जाए, इसको वेट गैंग्रीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वेट गैंग्रीन। इन्फेक्टेड ड्राई गैंग्रीन इज कॉल्ड वेट गैंग्रीन। और अगर एक तरफ पे क्लास्ट्रीडियम परफ्रेंजिस जाए, परफ्रेंजिस, वो गैस गैंग्रीन करा सकती है। क्या करा सकती है? गैस। व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट गैंग्रीन? आंसर इज एम्पुटेशन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ दैट अफेक्टेड लिम्ब। उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं, otherwise the patient gangrene will be spread to other parts of the body and on examination gangrenous part of the body look black। ये क्या नजर आती है? ब्लैक बिकॉज ऑफ नो वास्कुलरिटी, वहां पे ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायबिटीज की वजह से और क्या हो सकता है? शाबाश, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक वस्कुलोपैथी। हाँ जी, और क्या करा सकता है? इन लोगों ने तो सिर्फ ये 3 दिए हैं, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी और न्यूरोपैथी इन लोगों ने दी है। ठीक है, न्यूरोपैथी के अंदर आप लोग एक चीज याद रखें, न्यूरोपैथी में रेटिनोपैथी भी आती है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व कैन सप्लाई द आई, इट इज अ न्यूरॉन, ये नर्व है, तो इसका मतलब न्यूरोपैथी के अंदर रेटिनोपैथी भी आ सकती है। डायबिटीज अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इट कैन कॉज मल्टीपल सिस्टम ऑर्गन फेलियर। तो डायबिटिक सिस्टेमिक फेलियर, मतलब डायबिटीज कैन कॉज सिस्टेमिक फेलियर, बहुत से सिस्टम को ये फेल कर सकती है, सिस्टेमिक फेलियर। ठीक है, बहुत से सिस्टम को फेल कर सकती है, तो सिस्टेमिक फेलियर भी करा सकती है। तो दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। इन तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए वी शुड स्ट्रिक्टली फोकस ऑन द पेशेंट प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू चेंज their dietary modification like regular exercise, decrease या avoid stressful condition, decrease anxiety or regular exercise and decrease intake of sweets in the food। dietary changes की वजह से आप काफ़ी हद तक डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद हम पेशेंट को एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएंगे। अगर वो पेशेंट स्टार्ट कराएगा, एक चीज़ जो बहुत कम फिजिशियन बताते हैं, ये प्रैक्टिस में याद रखे, जब आप डायबिटिक पेशेंट को बताए कि ये करे, ये ना करे और ये ड्रग यूज क्या करे, बाद में उसको ये बताना है यू शुड रीच योर सेल्फ आफ्टर सम टाइम। 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद आप वापस आ जाए। पेशेंट की साइकी तो है कि यार इसने मुझे अपना मरीज बना लिया है, ठीक है, पैसे कमा रहे, लेकिन आप उसको काउंसल करेंगे, इस पे चीज के अंदर ये हो सकती है, आपकी नजर जा सकती है, आंखों की बीनाई जा सकती है, आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। आप पेशेंट को थोड़ा सा डराए, पेशेंट को बताए, रियलाइज कराए, ताकि वो फिर स्ट्रिक्टली मैनेजमेंट भी फॉलो करे और वो फिर अपनी ट्रीटमेंट के लिए सीरियस भी होता है। ठीक है, लेकिन ये वो डॉक्टर करता है जिसके पास नॉलेज होता है। तो यू शुड एजुकेट यूर पेशेंट, आप उसको एजुकेट करें, आप उसको काउंसल करें, तब पेशेंट आपको फॉलो करेगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आखिर में 1-2 चीजें जो मैं, एक मिनट, इसमें मैंने कोई चीज थोड़ी तो नहीं है, ओके सही है, ठीक है। इसमें जनाब एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है डायबिटिक पेशेंट में। अब आ गया, अब आप लोग पास फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट पे 1 घंटा लेक्चर है, वो आप लोगों को आज वीडियोस में मिल जाएगा। उसमें एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन की है, उसमें आप लोगों को एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन की है। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, एंडोक्राइन के ड्रग जो है, तो आप लोग सारे देखेंगे। मैंने ये भी बताया है कौन सा ड्रग पहले देंगे, कौन सा बाद में देंगे, कौन सा ड्रग किस टाइम देंगे, तो वो सारा वीडियोस आप लोग देख लेंगे। लेकिन उस वीडियो के लिए मैं कंसेप्ट थोड़ा सा बना रहा हूँ आप लोगों का कि क्या करना है। देखे, सबसे पहले तो हमारा जो मैनेजमेंट है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ डायबिटीज पे। डायबिटीज टाइप्स क्या है? अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो उसमें क्या नहीं है? इंसुलिन नहीं है, तो हम इसको बाहर से क्या देंगे? इंसुलिन देंगे, इंसुलिन देंगे। ये टिक पॉइंट है जो एनएलई वाले पूछेंगे आप लोगों से कि द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर टाइप 1 डायबिटीज इज इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिन के फिर टाइप्स है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो मैंने टेबल बनाया है कि कौन सा इंसुलिन क्या है। इसमें एक है, सुन ले, एक है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। कौन सा? शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। ये आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा, सिर्फ फोकस इधर करे, समझाए। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का बेस्ट एग्जांपल है
रेगुलर इंसुलिन। कौन सा इंसुलिन? रेगुलर इंसुलिन। एंड दिस इज द फर्स्ट लाइन इंसुलिन इन आईवी विच विल गिव इन डीकेए पेशेंट। ये किस में देते हैं? डीकेए पेशेंट। ज्यादा इंसुलिन हम सब कुटेनियस देते हैं, लेकिन डीकेए पेशेंट में हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रेगुलर इंसुलिन। किस रूट से देते हैं? आईवी से देते हैं। फिर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में कहता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। इसमें दो ड्रग आते हैं, वन इज डेटिमर अनदर इज ग्लार्जीन, ठीक है, ग्लार्जीन, डेटिमर और ग्लार्जीन, ये दोनों लॉन्ग एक्टिंग हैं। ये अगर हम पेशेंट को क्रोनिकली ज्यादा देर तक लॉन्ग एक्टिंग देंगे तो डेटिमर दे सकते हैं या ग्लार्जीन दे सकते हैं। चले जी, एक और एमसीक्यूज आता है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन? आंसर इज हाइपोग्लाइसीमिया। एक पेशेंट है, वो डायबिटिक था और अनकॉन्शियस होकर अस्पताल में लाया गया है, तो यू विल सस्पेक्ट दैट द पेशेंट may take excess insulin and glucose level is reduced to dangerous level that the patient develop hypoglycemia, and hypoglycemia can make the patient unconscious। वो क्या कराता है? Why? Because the only rich source of energy for the brain is glucose। क्योंकि ब्रेन अगर रहता है किस पे काम करता है? ग्लूकोज पे करता है। अगर ग्लूकोज की डिलीवरी 90 सेकंड तक भी ब्लॉक हो जाए ब्रेन को, द पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस। और अगर ये चीज बढ़ती गई, एक वक्त आ जाता है कि पेशेंट टोटली जनाब अनकॉन्शियस होकर उस पर 24 आवर्स का टाइम लग जाता है, जिसको कोमा कहते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस स्टेट में डेवलप टू कोमा, ये कोमा में जा सकता है। कोमा की टाइप्स क्या है, कोमा की टाइमिंग क्या है, वो हम न्यूरोलॉजी में, कल से न्यूरोलॉजी स्टार्ट करेंगे। न्यूरोलॉजी इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स यू पीपल विल लव टू हेयर, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कोमा को हम अलग पढ़ेंगे। अब कीटोटिक कोमा क्या है, नॉन कीटोटिक कोमा क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब यह है कि देखें कि जब भी इंसुलिन इंजेक्शन लेते वक्त कोई बंदा अनकॉन्शियस लाया तो ये क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया होगा। टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट में हम ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट देंगे टैबलेट शक्ल में। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 2 डायबिटीज इन ओबीस पेशेंट दैट इज मेटफॉर्मिन। हम कहते हैं मेटफॉर्मिन, जेटफॉर्मिन के नाम से आती है, ग्लूकोफेज के नाम से गोली आती है, दैट इज मेटफॉर्मिन, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 2 डायबिटीज। लेकिन मेटफॉर्मिन के दो फवायद है, ग्लूकोज को कम भी करता है और वेट भी रिड्यूस करता है। और टाइप 2 डायबिटीज का मोस्ट कॉमन काज क्या है? ओबेसिटी है। वो क्या है? ओबेसिटी है। ये क्वेश्चन याद रखना है। आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेटफॉर्मिन इज कंट्रा इंडिकेट इन केस ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस या रीनल फेलियर, क्योंकि मेटफॉर्मिन लैक्टिक एसिडोसिस कराता है। इन लैक्टिक एसिडोसिस बी प्रूवन टू वेरी डेंजर फॉर किडनी। तो जिस बंदे की किडनी पहले से काम नहीं करती तो उसको हम बाहर से क्या नहीं देते? मेटफॉर्मिन नहीं देते। बात समझ गए कि नहीं? तो मेटफॉर्मिन इज अ ड्रग which is the drug of choice for type 2 diabetes, but this drug is not given to a patient who has previously renal failure, क्योंकि it can worsen renal failure। तो इस पूरे मैनेजमेंट पे आप लोग इसमें और आगे ड्रग है सीटाग्लिप्टान, रीवाग्लिप्टान, ठीक है ना, सल्फोनाइल यूरिया, ग्लेब्जाइड, ग्लाइब्यूराइड, ये सारे ड्रग मैंने पढ़ाए हैं, इंशाल्लाह वो वीडियो शक्ल में मिल जाएगी। तो ये जो इन लोगों ने क्लिनिकल आप लोगों से पता था वो दिया है, और इंशाल्लाह वो ड्रग देकर आप लोगों का डायबिटिक सेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं, 10 मिनट ब्रेक करे शावर जी। हाँ जी, नहीं डोज नहीं पूछेगा, डोज हम ग्लूकोज की स्टेटस पे डिपेंड करते हुए, पेशेंट की स्टेटस, आर्गन इन्वॉल्वमेंट और ना ग्लूकोज की लेवल पे डिपेंड करते हुए हम टाइमिंग और डोज एडजस्टमेंट उसी टाइम करते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी डोज आती नहीं है, ठीक है ना जी। हाँ, कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन एक ड्रग को दूसरे के साथ कंबाइन कर दें। एक मिनट, एक तेज बोले। ओके, कौन सा टेस्ट है जिसमें हम ये देख सके कि DM1 का है या DM2 का है? वेरी गुड। सबसे पहले तो हम डायबिटीज को रूल आउट करते हैं, डायबिटिक पेशेंट है कि नहीं। फिर दूसरी बात, पेशेंट के साथ एसोसिएटेड डिजीज देखते हैं, अगर उसमें ऑटो इम्यून डिजीज का कोई अदर फीचर है तो मोस्ट लाइकली टाइप 1 की तरफ जाता है। अगर पेशेंट सामने से आपको देख रहा है वो ओबीज है तो ये क्या है? टाइप 2 की तरफ है, उसमें फैट भी ज्यादा है, वो टाइप 2 की तरफ है। जो टाइप 1 है इट रन इन द फैमिली,
وہ فیملی میں بھی رن کرتے ہیں, جینیٹک پرابلم بھی ہو سکتی ہے, لیکن ٹائپ 2 فیملی میں رن نہیں کرتی. ٹائپ 1 پیشنٹ میں ہائپوگلائسیمیا, وہ کہتا ہے کہ میں کبھی کبھار اتنا ڈیزی ہو جاتا ہوں, میں گر جاتا ہوں, کیونکہ ٹائپ 1 میں انسولین ہوتا ہی نہیں ہے. ٹائپ 2 میں انسولین ہوتا ہے لیکن کام نہیں کرتا, تھوڑا بہت گلوکوز پھر بھی وہ ان کر سکتا ہے, تو اس میں مائلڈ ہائپوگلائسیمیا. وہ پیشنٹ اسٹیبل ہوتا ہے, ٹائپ 1 والا کام بھی نہیں کر سکتا, وہ کہتے ہیں میں تھوڑا سا انرجی لگاتا ہوں, میں گرنے کا قابل ہو جاتا ہوں. اس کا مطلب کہ انسولین ہے نہیں, اس لیے گلوکوز بالکل ڈینجرس بڑھ جاتی ہے. کلیئر ہے؟ تو ٹائپ 1 ٹائپ 2 میں تو ایک فیچر کا فرق ہے. دوسری بات, آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں, آپ انسولین چیک کرتے ہیں. انسولین اگر کسی اچھے خان جو لیب ہے, اچھے لیب سے چیک کر انسولین نہیں ہے یا بہت کم ہے, مائلڈ ہے, اٹ از موسٹ لائکلی ٹائپ 1. پھر بیٹا سیل سینسٹیوٹی چیک کرتے ہیں. بیٹا سیل سینسٹیوٹی کیا, آپ تھوڑا سا شارٹ انسولین دیتے ہیں. انسولین دینے کے بعد جب آپ بلڈ شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں, اگر وہ کیا چیز آ گیا, کم, اس کا مطلب کہ ریسیپٹر ٹھیک ہے لیکن انسولین نہیں ہے. اگر انسولین شارٹ دینے کے بعد بھی گلوکوز کم نہ ہوا, اس کا مطلب انسولین ہے لیکن ریسیپٹر خراب ہے, پھر ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی طرف ہے. So there are multiple ways that you will differentiate type 1 from type 2. آخر سوال ایک میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ہم نے کہا کہ ایڈیپوز ٹیشو یا اسکیلیٹل مسل کو انسولین کیا کرتا ہے, گلوکوز دیتا ہے. اگر انسولین نہیں ہے تو سیل گلوکوز کنزیوم نہیں کرے گا. تو پھر برین تو ہر ٹائم کس پہ کام کرتا ہے, گلوکوز پہ. یاد رکھے برین کے جو سیل ہے نیورون, اس کو گلوکوز فری ملتی ہے بغیر انسولین کی, اس کو کہتے ہیں انسولین انڈیپینڈنٹ اپ ٹیک. لیکن اسکیلیٹل مسل میں کیا ہے, انسولین ڈیپینڈنٹ اپ ٹیک ہے. تو ڈائبیٹک پیشنٹ از ویری ویل, اگر برین کو بھی انسولین گلوکوز دیتی تھی تو پھر ڈائبیٹک پیشنٹ ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتا تھا. لیکن برین کے جو سیل ہے دے سروائیو آن گلوکوز, بٹ گلوکوز انٹری ٹو دا برین از فری وداؤٹ انسولین. اس کو انسولین انڈیپینڈنٹ اپ ٹیک کہتے ہیں. لیکن ایکسس گلوکوز کو فیٹ سیل میں, ایڈیپوز ٹیشو میں, اسکیلیٹل مسل میں جب ہم سٹور کرتے ہیں, جب یہ زیادہ ہو جائے تو پھر اس کا کام کیا ہوگا, انسولین. تو اس کو انسولین ڈیپینڈنٹ اپ ٹیک کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ ریٹنا, ریٹنا آف دا آئی, cornea of the eye, it also required glucose, but they all are independent uptake. یہ سارے کیا ہوتے ہیں, independent. The only two area of the body where we store maximum glucose when glucose very high, for that we need insulin, and that is adipose tissue and skeletal muscle cell. اس کو GLUT4 transporter کہتے ہیں. glucose intolerance کیسے ہوگا, very good. glucose intolerance, if someone take glucose but the patient cannot tolerate it, اس کو کہتے ہیں گلوکوز انٹالرنس. گلوکوز انٹالرنس از سین ان ڈائبیٹک پیشنٹ. اٹ از موسٹ کامنلی سین ان ٹائپ 1 بٹ لیسٹ کامنلی سین ان ٹائپ 2. آپ گلوکوز لے رہے, آپ کا گلوکوز پہلے سے کیا ہے, زیادہ ہے, یو کین ناٹ بیئر دیٹ, آپ برداشت نہیں کر سکتے, زیادہ ہے, سمٹم لائے ہے اور انسولین ہے ہی نہیں, آپ مزید گلوکوز لیں گے, یو ول ٹالریٹ اور ناٹ, یو ول نیور, بیکاز یو کین ناٹ بیئر دیٹ گلوکوز بیکاز دیر از نو انسولین. So a condition in which you take glucose and your symptom become more worse, that is called glucose intolerance. تو most common glucose intolerance کس میں ہوتا ہے, ٹائپ 1 میں, جس میں انسولین ہوتا ہی نہیں ہے. ٹائپ 2 میں پھر بھی انسولین تھوڑا بہت کام ایڈجسٹ کر لیتا ہے, تو اس میں گلوکوز انٹالرنس کم ہوتی ہے. Can a diabetic patient eat something which contain glucose or sweet? No. Why? We say کہ ڈائبیٹک پیشنٹ ڈو ناٹ ٹیک سویٹ اور بیکریز. کیوں نہیں کھائے گا, بیکاز دا پیشنٹ کین ناٹ ٹالریٹ دیٹ سویٹ, وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتا, ادر وائز دا پیشنٹ سمٹم بیکم ورسن. اگر اس کو کمپلیکیشن سال میں ہونے تھے اور وہ گلوکوز لیتا رہے, دیٹ کمپلیکیشن ول بی ڈن ان ود ان 6 months. کمپلیکیشن ٹائم کم ہو جاتی ہے, کمپلیکیشن آن سیٹ بڑھ جاتی ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ڈائبٹیز پیشنٹ میں جب ایکسس گلوکوز ہوتا ہے, excess glucose is converted into a molecule known as galactitol. یہ کس میں کنورٹ ہوتی ہے, galactitol. یہ یاد رکھیں, یہ اچھی پوائنٹ یاد آ گئی. excess glucose in the body is converted into galactitol and galactitol draw water from the lens of the eye. It can cause cataract. یہ کیا کر سکتا ہے, cataract بھی کرا سکتا ہے. یہ ہم cataract میں پڑھیں گے. When transparency of the lens in the eye is lost and the lens become opaque, that is called a cataract. تو cataract ڈائبیٹک پیشنٹ میں ہو سکتی ہے کہ نہیں, کیونکہ ڈائبیٹک پیشنٹ میں گلوکوز لیول زیادہ ہوتا ہے, and excess glucose is converted into galactitol. How? We will discuss in the future classes. Galactitol osmotically draw water from the lens of the eye. اور اگر لینس سے ہم واٹر ڈرا کریں, لینس
کس سے بنا ہے؟ پروٹین سے، واٹر سے، وہ ڈینیچر ہو جائے گا، انسان کو صحیح طریقے سے نظر نہیں آئے گا، دیٹ از کالڈ کیٹاریکٹ. تو کیٹاریکٹ بھی ہو سکتا ہے، ریٹینوپیتھی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، اوکے 10 منٹ بریک کرے پھر نیکسٹ لیکچر لے رہے ہیں. اوکے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ایک منٹ، گڈ. ہی ریز اے ورڈ گیسٹیشنل ڈائبٹیز. کیا چیز ہو؟ یہ میں نے اس لیے نہیں ڈسکس کی، آئی لیفٹ دس ٹاپک فار گائنیکولوجی، کہ ہم کس میں پڑھیں گے؟ گائنی میں پڑھیں گے. If a female get diabetes, no matter it is type 1 or type 2, but at the same time if she is pregnant, that is called gestational diabetes. Okay, اب یہ بھی بہت important MCQs ہے. The drug of choice for gestational diabetes, no matter it is type 1 or answer is insulin. Insulin cannot cross placenta. Other diabetic agent may can cross placenta and damage the fetus. So 2 points. Pregnancy onset diabetes is called gestational diabetes. Drug of choice for gestational diabetes is insulin. That's it. Inshallah we will discuss in gynecology. ٹھیک ہے، ڈائبیٹک مدر کا فیٹس پہ کیا ایفیکٹ ہے سارے گائنیکولوجی میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، IUGR کراتا ہے، انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن کراتا ہے.